کرتا ہوں کہ اپنے افتتاحی کلمات سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر کے رحمان صاحب. محمد قبل MLA شیواجی نگر کہ یہ 2 روزہ سیمینار میں کرناٹک اور ملک کے کونے کونے سے محبان اردو جو یہاں جمع ہوئے ہیں، انجمن تحریک اردو کرناٹک کی طرف سے منعقد ہوا ہے. میں خاص کر جناب عبید اللہ شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ابھی یہاں ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی اور ہندوستان میں ترقی کی. اس کا جائزہ لیں، یعنی اس کا ماضی بہت شاندار ہے. اب جو حال کا اردو ہے، اردو کی جو حالت ہے، اس کا جائزہ ہم کو لینا. جو آج ہم ہر ایک اردو کے چاہنے والا، اردو سے محبت رکھنے والے کو انٹراسپیکٹ کرنے کی بہت ضروری ہے. میری زبان، یہ زبان سے مجھے محبت ہے. میں کیا کنٹریبیوٹ کروں گا اس کی ترقی کے لیے، کیونکہ اس انجمن کا نام ہی انجمن ترقی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اردو سے محبت رکھنے والوں کی طرف سے ہی ختم ہو رہی ہے. غیر تو غیر، اردو کے دشمن بھی ہیں، چاہتے ہیں کہ اردو اس ملک میں ختم ہو جائے کیونکہ مسلمانوں کی زبان پہ آ جائے. کیا ہم ان کے شکار ہو رہے ہیں؟ تو کچھ آفتاب و مہتاب اور اس میں کئی اردو ادب کے نقد و جبرا کے ماہر بھی یہاں موجود ہیں. اور جو یہاں سامعین تشریف فرما ہے، اس میں سخن سنج، سخن شہناز اور سخن فہم بھی ہیں. پھر بھی رسمن ہی صحیح مجھے کچھ تو کہنا ہے. کیا کہوں وہ سوچ رہا ہوں. کیونکہ اردو زبان کی ایک تاریخ ہے. اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار اردو ہے. آپسی بھائی چارے کی پہچان اردو ہے. یہ ہندو مسلم دونوں نے گلستان اردو کی آبیاری کی ہے. یہ دونوں کی مشترکہ وراثت تھی. لیکن مجھے آج لگتا ہے کہ نفرت کا باعث بن چکی ہے. یہ دونوں کی وراثت نہیں رہی، بلکہ صرف اس کو مسلمانوں کی زبان بنا کر رکھ دیا گیا. اور جیسا رحمان خان صاحب کہہ رہے تھے، میں اس کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں آج آپس میں بیٹھ کر سوچنا سمجھنا ہے کہ اس کو اس حالات سے کیسے اٹھانا. میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں سر کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سیمینار کو مشاورت میں بدل دیا جائے، تاکہ ہم آپسی مشوروں سے اردو ادب کی نشر و اشاعت، حفظ و بقا، ترقی و ترویج کے لیے ایک منصوبہ بند طریقہ کار کے لیے غور و فکر ہم لوگ سب مل کر سکیں اس 2 دن کے سیمینار. السلام علیکم. ہمارا کانسٹیچوئنسی میں بہت
गरीब का कॉन्सेंस है, उसमें हमें एजुकेशन देना, ज्यादा एजुकेशन देना, माइनॉरिटीज ज्यादा है। उस तरह से ITI इंस्टीट्यूट भी वो नेक्स्ट महीने में पूजा का कोई नवा इंस्टीट्यूट करने को कर रहा है हमारे बेरोजगारी में। कई लोगों को SSC पास होने के बाद उसे काम बाहर नहीं जाता, बेच में भी और चक्र में उस तरह से हमारा कॉन्सेंस में ITI इंस्टीट्यूट करे तो उन्हें एक गवर्नमेंट काम नहीं मिल सकता है, इंस्टीट्यूट में करे तो उस तरह से अच्छा पढ़ो, उन्हें अच्छा वो देगा। कोई कार्यक्रम कर रहा है हमारा इंजीनियर, हमारा ये डिग्री PUC कॉलेज में ओपन करते हैं, नवा कॉलेज हमारे बीजेपी में आप सबको मानेगा। और अभी 20 रूम सिटी के वास्ते, एजुकेशन के वास्ते आज हमारा BO साहब के पास बात करो 20 रूम एक्स्ट्रा रूम भी करने को कोशिश करको कर रहा है। अब एजुकेशन में हमारा माइनॉरिटीज को ज्यादा एजुकेशन देना करको हमारा कॉन्सेंस के अंदर हमें रेडी करना। आप सबका आशीर्वाद, अल्लाह का आशीर्वाद से अब सबको अच्छा होना, हमारा कॉन्सेंस अच्छा एजुकेटेड होना करको ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. लेकिन ये पहला तजुर्बा है सेमिनार करवाने का, तो मौजू लेकर जो है हम डॉक्टर राहिफ इलाही साहब के पास आपसे मशवरा, फिर वहां से मीमनून सईद साहब के पास, फिर चलते चलते जो है एक बार सरगरो साहब आए। हम सब ने मिलकर ये तय किया कि एक सेमिनार होना चाहिए कि जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू की इब्तिदा, इर्तिका और उसके मसाइल। सेमिनार इस मौजू पे कराना हमारा मकसद ये नहीं था कि जनूबी हिंदुस्तान या शुमाली हिंदुस्तान के बीच एक टकराव हो, ये मकसद नहीं था। मकसद यही था कि उर्दू की इब्तिदा में भी, उसकी तरक्की में भी जुनूब कभी पीछे नहीं रहा, जनूबी हिंदुस्तान पीछे रहा। और शुमाली हिंदुस्तान जनूबी हिंदुस्तान को छोड़ के जो है उर्दू को लेके चले, ये भी नामुमकिन है। यही हमारी कोशिश थी। हमने एक सेमिनार शुरू किया कि दुनिया भर में कितने लश्कर नहीं है, किसी लश्कर में आज तक कोई नई जबान नहीं पढ़ा। उर्दू को ये इज्जत, ये एहसास कहाँ से मिल गया कि लश्कर के सिपाही जो मैदान जंग में जंग करने के लिए जिनकी तरबियत की जाती है, वो एक नई जबान बना बैठे और वो जबान बनने के बाद अवाम में कैसे फैल गई। प्रोफेसर मीमनून सईद साहब की शख्सियत अपने आप में उर्दू का एक इदारा है और मैं उनकी खिदमत में ये शेर पेश करना चाहती हूँ। सका न कोई तेरे रब का अंदाजा, लगा सका न कोई तेरे रब का अंदाजा, तो आसमान ही मगर सर झुकाए बैठा है, तो आसमान मगर सर झुकाए बैठा है। जनाब अहमद सिराज शरीफ साहब से गुजारिश है कि नशीन पर तशरीफ लाएं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब जिस खामोशी के साथ उर्दू खिदमत करते आ रहे हैं, तो उनके लिए कहना तो जरूरी है। उनके खिदमत में ये शेर पेश करती हूँ कि हमने खामोश इशारों को ज़बान बख्शी है, हमने खामोश इशारों को ज़बान बख्शी है, हम खामोशी से भी तूफान उठा देते हैं। ये शेर जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब के लिए, और उसके साथ ही हम पहले सेशन का आगाज करते हैं। और सबसे पहले हमारे मकाला निगार हैं डॉक्टर माजिद दावी साहब। डॉक्टर माजिद दावी साहब का ताल्लुक गुलबर्गा शरीफ से है। मैं गुलबर्गा को गुलबर्गा शरीफ इसलिए आप गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के सोचोगे उर्दू और फारसी में दर्स व तदरीस अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही मुमताज शायर, अदीब, मुहक्किक, नक्कार और मुजाहिद उर्दू हैं। आपके लोक साहित्य पंच के बानी और सदर भी हैं। अंजुमन तरक्की हम गुलबर्गा के साथ सेक्रेटरी और ताहयात रुकन भी है। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। आपकी तस्लीम ज़वाल आदम का रस्म इजा के वक्त में मौजूद थी और शायद किया था उसका अनाउंसमेंट।
ज़वाए आदम शेरी मजमुआ है, सौगात सद शेर आला हज़रत अहमद रज़ा का मंसूब सवानी खाका है, फन के कुछ तनकीदी ज़ाविये जिस पर कर्नाटक उर्दू अकादमी को आपके एवार्ड से नवाजा गया। तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन के लिए कर्नाटक उर्दू अकादमी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से कौमी अवार्ड आपको दिया गया। बहरहाल जनाब डॉक्टर माजिद दादी साहब अब तक रियासत की तमाम गैर सियासी, अदबी, समाजी, सकाफती तंजीमों से बहुत से एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। देखिए, ये अंजुम तरक्की उर्दू का जलसा है, उर्दू की तरक्की होना है और तरक्की और उर्दू को मेरा जो पैगाम था कि उर्दू को घर घर पर पहुंचाइए, यानी कि जब तक जिसकी मादी ज़बान उर्दू है वो उर्दू से नहीं जुड़ेंगे तो उर्दू की तरक्की नामुमकिन है। तो इसलिए मैं इस मौके पर इफ्तिताई मेरे तकरीर में कहा कि दो चीज़ें, एक तो उर्दू को घर घर तक पहुंचाइए, उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ें। अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं तो घर घर तक पहुंचना आसान है। तो ये दो चीज़ें हैं, उर्दू की तरक्की होना चाहिए। उर्दू हमारी तहज़ीब है, तमद्दुन है और उर्दू में हमारी विरासत है। तो इसलिए उर्दू को बचाना हमारी अखलाकी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है हमारी। अब जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है तो हम खुद उर्दू के मुहब्बाने में वो अगर खुद उर्दू से नहीं जुड़ेंगे और इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो उर्दू, ये दिन भी आएगा कि उर्दू कॉन्स्टिट्यूशन की ज़बान से चले जाएगी। देखिए, हुकूमतों के ऊपर कोई भी तरक्की, हुकूमत एक फैसिलिटेटर है। हमारी जो सोच है कि हुकूमत अगर मदद करेगी तो कोई चीज़ करेंगे, ये नहीं है। हुकूमत को हम, जब हमारा अखलाकी फरीज़ा है तो हुकूमत से क्या लेना देना, हुकूमत कुछ माली इमदाद दे देगी तो हुकूमत और क्या कर सकते है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए हुकूमतों के पर मुनज़्ज़र नहीं होना चाहिए। ये कोई भी ज़बान की तरक्की, ज़बान बोलने वाले ज़बान के लिए तरक्की के लिए काम करना चाहिए। पैगाम मेरा कोई बहुत पुख्ता या बहुत पुराना या कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उर्दू जो है हमारे वजूद से जुड़ी हुई है, हमारी तारीख़ उर्दू से जुड़ी हुई है, हमारा तहज़ीब व तमद्दुन उर्दू से जुड़ा हुआ है। अगर उर्दू महदूद हो गई तो इसका सीधा सीधा असर हमारे मुस्तक़बिल पर होगा। तो उर्दू को बचाने के लिए, उर्दू को मजबूती देने के लिए, इसको ताकत फरोग करने के लिए हमें सबको आगे आना है और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी का जो थोड़ा बहुत उसको अदा करने की हमने कोशिश की है शिवाजी नगर हल्के में, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है, अभी बहुत कुछ काम करना है। उसके साथ साथ आज जो उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़रिए एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस का आज एहतमाम किया है, तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को भी होना है, क्योंकि जुनूब हिंद में उर्दू की क्या तारीख़ रही, इसका यहाँ से कैसे कैसे उद्बा और फनकार ने क्या ताउन किया है, ये सब चीज़ों को हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे नौजवानों को की नज़र में लाना ज़रूरी है। और जुनूब हिंद का बहुत बड़ा ताउन उर्दू की तरक्की में रहा है। ये वक्तन फ़वक्तन हमें ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करना है और इसमें बात होनी है और उर्दू के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना है। ये हमारा मकसद जो है घर घर उर्दू पहुंचाने का है। ये सेमिनार करने का एक और मकसद ये था कि अंजुमन तरक्की उर्दू कई सालों से जो है बिल्कुल इसकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। हमें ये साबित करना था कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक जिंदा है। आज इस सेमिनार के ज़रिए सारे मुल्क में जो है ये पैगाम पहुंचा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक जो है एक फ़ाल
अंजुमन बन के उभरी है। और हमारा मकसद इस सेमिनार से यही है कि उर्दू को किस तरीके से अवाम तक पहुंचाया जाए, जो लोग उर्दू से दूर हो गए उनको उर्दू के करीब कैसा लाया जाए, खासकर नई नस्ल जो है जो उर्दू से दूर हो गए है उसको किस तरीके से उर्दू से जोड़ा जाए। इन तमाम हजरात की मौजूदगी इस बात का सबूत देती है कि एक कामयाब सेमिनार है। इफ्तिताई इजलास बहुत कामयाब रहा और मैं समझता हूँ कि ये पैगाम जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उर्दू का, कि हर घर उर्दू, उसमें जो है हम कामयाब होकर रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि हमने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है हमारे रिटायर्ड AS ऑफिसर्स, जिसमें आदोनी सैयद सलीम साहब हैं, अजीजुल्लाह बेग साहब हैं, सलाहुद्दीन साहब हैं, MA खालिद साहब हैं, मीर अनीस अहमद साहब हैं। ये हजरात जो है एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वो कई स्कूल जो है उर्दू स्कूल्स को विजिट भी किए हैं। उर्दू स्कूल के जो मौजूदा हालात हैं जिसमें बहुत कम दाखिले हो रहे हैं, जबकि 4.5 लाख इससे इस वक्त सारे मुल्क में रियासत में जो है पहली जमात से 10वीं जमात तक दाखिले हो रहे हैं, उसको मजीद कैसे ज़्यादा किया जाए और जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं उसको कैसा कम किया जाए, उस ताल्लुक से जो है ये एक रिपोर्ट पेश करेंगे। और हुकूमत की तरफ से जो कोताहियाँ हुई हैं उर्दू स्कूल्स के तरफ से उसकी भी निशानदेही की जाएगी और उर्दू हुकूमत से जो है इन स्कूल्स को तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम जोर डालें।